डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क डिजिटल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम तरुण हिंडवा और हमारा सफर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये समझा कि एक्चुअली व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर टू रिप्रोडक्शंस एंड द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? हमने स्टार्ट किया था द टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In asexual reproduction studied that the upcoming organisms are exactly similar to their parents as well as to their siblings, and they are the morphological or genetically identical, so they are known as clone. And the individual, the single organism, the individual of clone is called as ramete. Clear? Then हमने start किया था types of reproductions को लेकर। They are the टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। क्लियर? हमने अभी तक कौन कौन से टाइप्स पढ़े उसको एक बार हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइंड कर लेते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ फिशन। याद है ना आपको? वी स्टडीड अबाउट द फिशन। व्हाट इज द फिशन? द पार्ट डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू, द पेरेंटल बॉडी डिवाइडेड इनटू द हाफ। ठीक है, वो दो पार्ट्स में, दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइडेड हो जाएगा। एंड द बेसिक पैटर्न्स ऑफ द फिशन इज द फर्स्ट वन इज द बाइनरी फिशन। The first one is the binary fission. That means whenever the parental body divided, they divide into the two body parts, and these two organisms are function as a new organisms. Clear? So, and we have already studied the types of the binary fission. There are basically four types of the binary fission. Here I am showing the diagram. There are the four types of the binary fission. The first one जो type होगा हमारे पास में, this is the, it is actually based on the plane of division. Actually it is based on the plane of division. Which plane they divided into two, they are classified into the these categories. नंबर वन जो हमारे पास प्लेन ऑफ डिविजन रहेगा, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। कौन सा हमारे पास में? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशंस। एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का जो डायग्राम दे रखा है आपको, जो हमारे पास शो हो रहा है, इट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द यूग्लिना। क्लियर? सेकेंड वन इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, and transverse binary fission is performed by Paramecium. Then the oblique binary fission performed by the Goniolax and Ceridium. Then irregular binary fission is performed by Amoeba. Clear? In binary fission, whenever the nuclear division take place, उसके ठीक जस्ट बाद में सेल डिविजन होगा। That means karyokinesis just followed by the cytokinesis. Binary fissions के बाद में जो हम दूसरी बात करते हैं, हम बात करेंगे मल्टीपल फिशंस को लेकर। इसकी बात करेंगे हम, मल्टीपल फिशंस को लेकर बात करेंगे। बाइनरी फिशन जो प्रोसेस है, इट इज टेक प्लेस अंडर द favorable condition. Binary fission performed under the favorable conditions, while the multiple fission take place under unfavorable conditions. Actually what would be happen in the multiple fissions? During unfavorable conditions, there are the number of nuclear divisions, there are the number of karyokinesis, and after the sufficient amount of karyokinesis, there is a cytoplasm aggregate around the cytoplasm जो होगा वो each and every nucleus के चारों तरफ क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। तो इसका अपीयरेंस कुछ इस टाइप से होगा, जैसे कि हमारे पास एक सिंगल सेल है, there is a nucleus, the cytoplasm. During the unfavorable condition, they form a cyst. This is the nucleus, and nucleus surrounded by cytoplasm, nucleus aggregated by the cytoplasm. And whenever the favorable condition is resumed, the
parental body is ruptured and the cyst released under favorable condition and germinate to form the new individuals. This multiple fission is performed by the amoeba and plasmodium. Clear? And the third one of the pattern of fission is plasmotomy. Clear? And plasmotomy is performed by the multinuclear organisms. Most of the protozoas and the protozoas are there. So plasmotomy is performed by the multinuclear organism. Whenever they divide, they form the multinuclear new organisms. तो हमने फिशंस के बारे में देखा. हमारे पास में था बाइनरी फिशन, हमारे पास में आया मल्टीपल फिशन, हमारे पास में आया प्लाज्मोटोमी. क्लियर? देन फिशंस के बाद में जो हमने स्टडी किया था वो हमारा पैटर्न था बडिंग को लेकर, है ना. फिशंस के बाद में हमने क्या पढ़ा? बडिंग. एक्चुअली व्हाट इज द बडिंग? ठीक है, देयर इज ए स्मॉल आउटग्रोथ या स्मॉल ग्रोथ विल टेक विच पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, इसलिए स्मॉल ग्रोथ बन जाती है. स्मॉल ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं? बड कहते हैं. अब ये जो बडिंग का प्रोसेस है, दिस बडिंग टेक प्लेस इन yeast as well as in animal. बडिंग टेक प्लेस इन yeast as well as in animal. तो yeast के अंदर एक्चुअली बडिंग में क्या होगा? there is a yeast, the nucleus of yeast is a unicellular fungus. This is an exception in fungus. All fungus are multicellular except the yeast, which is a unicellular fungus, and this is the eukaryotic nucleus. Then develops a bud on the one side. Then after some time, there is a copy of this nucleus entered in bud. The bud grow over the surface of the yeast and then fully developed bud is detached from yeast and perform the function of a new individuals. Clear? Sometimes it's seen that there is a chain of बर्ड्स. ठीक है, कभी कभी यीस्ट के अंदर हमें बर्ड्स की चेन देखने को मिल जाती है. इस तरह से देयर इज ए चेन ऑफ बर्ड्स एंड द चेन ऑफ बर्ड इज नोन एज टोर्युलेशन. प्रोसेस इज कॉल्ड एज टोर्युलेशन एंड चेन इज कॉल्ड. ये जो बडिंग है ये एक चेन प्रोड्यूस करती है यीस्ट में एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग चेन by bird is called as torulation and the chain of bird is known as the torula. ठीक है. Now अब बात करते हैं बडिंग इन एनिमल्स को लेकर. क्लियर? बडिंग इन एनिमल्स को अगर अपन क्लासिफाइड करें तो बडिंग इन एनिमल्स हमने 3 टाइप से बात की थी. एक्सोजीनस बडिंग, endogenous budding and strobilation. ठीक है, एक्सोजीनस बडिंग, एंडोजीनस बडिंग और हमने क्या बात की थी? स्ट्रोबिलेशन. एक्सोजीनस बडिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? द बर्ड इज प्रोड्यूस्ड from the outer surface of the body. Bird is produced at the outer surface of the body. The example is hydra. The example is hydra. What is endogenous? That means bird is produced inside the body. Internal budding process होगा and this is take place in spongilla. This one's take place in spongilla and spongilla is a cypha which is belong from the phylum Porifera.
स्पॉन्जिला बिलोंग टू फाइलम ऑफ द पोरीफेरा। अगर अपन स्पॉन्जिला का एक डायग्राम देखें जो आपकी बुक में बना रखा है, एक्चुअली जो हमारे पास में एंडोजीनस है इसी को हमने जेम्यूल्स कहा है। द एंडोजीनस बडिंग प्रोसेस इज नोन एज जेम्यूल्स इन दिस स्पॉन्जिला एंड स्पॉन्जिला इज फ्रॉम द फाइलम पोरीफेरा। क्लियर? देखो बुक में हमारे पास क्या डायग्राम बना है स्पॉन्जिला का, इस तरह से एक डायग्राम बना है। क्लियर? देयर इज ए नंबर्स ऑफ बर्ड्स ओवर देयर, there is a numbers of birds inside the spongilla. Clear? And they are the spicules over there. They are the spicules. What is the spicule? They are from the skeleton of the porifera. Clear? Here this pore is known as micropyle. They are the skeleton which is composed of the spicules. This outer covering cell is known as pinacocytes and the budding cell is called as archaeocyte, and these archaeocytes having the capacity of totipotency. They having the capacity of totipotency and the archaeocyte cells when, और ये जो जेम्यूल्स बन रहा है हमारे पास में, it is formed under unfavorable condition. Gemmules are formed under the unfavorable condition, and as soon as the favorable condition is resumed, these all archaeocyte is coming out from the micropyle. They disperse in water, they travel distance in water, and after some time they germinate into a new porifera. So this is a method of dispersal of spongilla. This is a method of dispersal of spongilla. So gemmules spongilla में मिलेगा. It is a type of the endogenous budding process from the phylum of the porifera. There is a diagram of the gemmule which is presented in your book. The pore is known as micropyle. The cell present inside or the budding cells is called as archaeocyte. The outer covering is known as pinacocytes and the exoskeleton process is known as spicules. बुक में डायग्राम है, उसको लेबल कर लेना, बहुत काम का है. एंड आर्कियोसाइट हैविंग द टोटिपोटेंसी पावर. और ये जो जेम्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दे एक्चुअली आर फॉर्म्ड अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, एंड एज सुन एज द फेवरेबल कंडीशंस आर रिज्यूम्स, दीज archaeocytes is coming out from the gemmules and they spread in water, and after some time they germinate into a new poriferial organisms. Clear? Now अब हमने बात की है स्ट्रोबिलेशंस के ऊपर. हम बात करेंगे स्ट्रोबिलेशंस को लेकर. ठीक है. स्ट्रोबिलेशन एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश. क्लियर? यहां मैंने आपको एक डायग्राम शो किया है लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश को लेकर. ठीक है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश. एज सुन एज द जेलीफिश इज प्रोड्यूसिंग a small pupa, the pupa is going to develop and it convert into a larva, and this larva is called as a xyphostoma. Xyphistoma larva, and this xyphistoma larva is convert into Ephyra larva. डायग्राम आपको दे रखा है. साइफिस्टोमा लार्वा जिसको अपन बडिंग कह रहे हैं, साइफिस्टोमा लार्वा, एंड दिस साइफिस्टोमा लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू द इफायरा लार्वा, एंड इफायरा लार्वा मैच्योर. ठीक है, मैच्योर टू फॉर्म जेलीफिश विच इज नॉन एज ओरेलिया.
Jellyfish is known as Aurelia. And strobilation process you can also be seen in Taenia solium. Taenia solium is a pork tapeworm. Strobilation process, strobilas are also seen in the Taenia solium, and Taenia solium is a pork tapeworm. These all are the budding. यीस्ट में बडिंग होगा. इस यीस्ट में बडिंग की अगर चेन्स बनती है तो उसे अपन टोरुलेशन या टोरुला कहेंगे. एनिमल में बडिंग्स के हमारे पास में 3 पैटर्न है, एक्सोजीनस, एंडोजीनस एंड स्ट्रोबिलेशंस. एक्सोजीनस इन हाइड्रा आउटसाइड द बॉडी सरफेस, एंडोजीनस इनसाइड बडिंग प्रोसेस इन स्पॉन्जिला. इसका अपन ने डायग्राम भी देखा है. स्ट्रोबिलेशन इज द लाइफ साइकिल. स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस शोन इन द लाइफ साइकिल ऑफ द जेलीफिश. जेलीफिश की लाइफ साइकिल में प्यूपा स्टेज के बाद में क्या बनता है, साइफोस्टोमा लार्वा बनेगा. एक बार डायग्राम वापस देख लीजिए आप. साइफोस्टोमा लार्वा बनेगा. साइफोस्टोमा लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा इफायरा लार्वा. इफायरा लार्वा वाटर के अंदर ट्रेवल करेगा एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम मैच्योर एंड कन्वर्ट इनटू ए जेलीफिश व्हिच इज नोन एज ऑरेलिया. क्लियर? चलिए, ये हमने यहां पढ़ा सारा प्रोसेस जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. अभी अपन इसको वापस रिवाइंड कर रहे हैं. ठीक है. नाउ थर्ड हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशंस को लेकर. द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इज टेक प्लेस इन द लोअर ग्रेड ऑफ द प्लांट. Clear? In the lower grade of plant. And what is actually fragmentation is that when the plant body is detached from the main parental body, whenever the plant body is detached from the main parental body, this detached plant form the complete plant body. This process is known as fragmentation. तो कोई भी प्लांट का पार्ट अगर उस प्लांट के पार्ट से एक्सीडेंटली टूटकर अलग हो जाता है, so the detached part developed into the whole plant body. The process is known as fragmentation, and this fragmentation process is the main feature of the lower grade of the plant. इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे. हमारे पास एग्जांपल्स में कौन कौन थे? सबसे पहले हमने एग्जांपल लिखा था स्पायरोगायरा, राइजोपस, रेक्सिया, सिलेजिनेला. ये एग्जांपल्स हमने लिए थे. स्पायरोगायरा जो प्लांट है एक्चुअली दिस इज बिलोंग फ्रॉम द एल्गी. राइजोपस बिलोंग फ्रॉम द फंजाई, रिक्सिया फ्रॉम द ब्रायोफाइटा एंड सिलेजिनेला फ्रॉम द टेरिडोफाइटा. क्लियर? यहां तक हमारा रिवीजन हुआ था. नाउ आज जो हम नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स पढ़ने वाले हैं, दिस इज एक्चुअली द टाइप. फिशन हो गया, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो चुका है हमारे पास में. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन. किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन इज ए advanced method of the asexual reproduction in which the specific type of spores are formed and these spores are germinated. ठीक है. स्पोर्स फॉर्मेशन में हम जब बात करें तो दे आर द नंबर ऑफ स्पोर्स आउट ऑफ विच द वन इज द जूस्पोर. जूस्पोर इज एक्चुअली थिन and motile because they having the flagella. So they are the thin and they are the motile, and mostly they are developed under the favorable conditions. The example of the spore formation, zoospore formation, is the Chlamydomonas. Apart from the zoospores, and sometime from the aplanospore. The body, the structure of planospore is thin, but they are actually non-motile. ठीक है. अनफेवरेबल कंडीशन की कंडीशन है ये. अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा. हेप्नोस्पोर. The extreme unfavorable conditions, the extreme scarcity of water, the spores are thick and they are non-motile.
there is one example or conidia. This is the conidia and the example of conidia is penicillium. ठीक है, बुक में आपके पास डायग्राम दे रखा है. एक्चुअली पेनिसिलियम इज बिलोंग फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द फंजाई एंड द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई इज फिलामेंटस, जिसको अपन हाइफी कहते हैं. प्लांट बॉडी जो फंजाई का होगा फिलामेंटस होगा, जिसे अपन हाइफी कहेंगे. ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइफी का एक पोर्शन इलोंगेट करेगा and they form conidia. एंड कोनिडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है दे आर एक्सोजीनस. कोनिडिया इज डेवलप्ड एक्सोजीनस एंड द फिलामेंट ओवर विच द कोनिडियाज आर फॉर्म्ड इज नॉन एज conidiophore. This is the filament. This is the filament over which the conidias developed is known as the conidiophore. तो हमने स्पोर फॉर्मेशन को देखा. स्पोर फॉर्मेशन में हमने बात की देयर द जूस्पोर एंड कोनिडिया, दोनों आपके बुक में दे रखे हैं, डायग्रामेटिकल प्रेजेंट है. जूस्पोर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड कोनिडिया इज द पेनिसिलियम. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन. Next type of asexual reproduction is regeneration. Actually, what is the meaning of the regeneration? Is the regrowth of the body or any body part. या तो कंप्लीट बॉडी ही वापस रीग्रोथ होने वाला है या फिर बॉडी का कोई एक पार्ट या कोई स्पेसिफिक पार्ट का रीग्रोथ होगा. एंड दिस इज टेक प्लेस इन द लोअर ग्रेड ऑफ एनिमल. लोअर ग्रेड ऑफ एनिमल, जैसे कि हमने फ्रेगमेंटेशन की बात की थी कि फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस इन द लोअर ग्रेड ऑफ द प्लांट, as such as the regrowth or regeneration take place in the lower growth of the animal. अब regrowth को समझने के लिए हम regrowth को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. There are the two patterns of the regrowth. First one is the एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस. ठीक है, दो पैटर्न्स हो गए हमारे पास में, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस. देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉर्फोलेक्सिस को लेकर. ठीक है, मॉर्फोलेक्सिस का सिंपल सा मीनिंग हुआ रीग्रोथ ऑफ कंप्लीट प्लांट बॉडी. रीग्रोथ ऑफ द कंप्लीट प्लांट बॉडी. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में वो होगा हमारे पास में हाइड्रा, प्लेनेरिया. ठीक है, और ये आपको पता भी है प्लेनेरिया हैविंग द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. हाई पावर ऑफ रीजनरेशन यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं. Planaria and Hydra. Planaria and Hydra both shows the morpholexis type of regeneration, or in the morpholexis type of regenerations they
आफ्टर ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल, अगर किसी एक्सीडेंट के कारण इनकी बॉडी डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, तो द डिटैच्ड पार्ट और द डैमेज्ड पार्ट रीग्रो द कंप्लीट प्लांट बॉडी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज मॉर्फोलैक्सिस। ये हाइड्रा और प्लेनेरिया हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, डायग्राम है आपके पास में, हाइड्रा हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, प्लेनेरिया हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। अब बात करते हैं मॉर्फोलैक्सिस को लेकर। तो एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फोसिस को हम बात करेंगे। एपीमॉर्फोसिस का मीनिंग होगा रिपेयर ओनली सर्टेन डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, ओनली सर्टेन डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट हमने रखा है रिस्टोरेटिव और दूसरा है रिपेरेटिव। ठीक है, दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया है, एक तो है इसका रिस्टोरेटिव, दूसरा है हमारे पास में रिपेरेटिव। जो रिस्टोरेटिव है, ठीक है, जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है रिस्टोरेटिव। ठीक है, अब इसका डायग्राम शो होगा वहां पर, हाँ ये डायग्राम देखिए इसका। जो रिस्टोरेटिव है हमारे पास में, रिस्टोरेटिव का जो एग्जाम्पल है वो रहेगा टेल ऑफ लिजार्ड, limb of salamander. That means when lizard lost its tail, then the body of the lizard formed the new tail. यानी कि जो पार्ट उन्होंने लॉस किया है उसको वापस वो क्या करेगा, रीस्टोर करने वाला है। ठीक है, इस एज वेल एज सैलामेंडर्स के जो लिम्स होते हैं, सैलामेंडर का लिम्ब अगर किसी रीजन से कट हो जाता है या एक्सीडेंटली टूट जाएगा तो आफ्टर सम टाइम में उसके नए लिम्स का फॉर्मेशन उसी डैमेज्ड पार्ट से होगा, जैसे कि लिजर्ड के अंदर होता है। तो दिस इज अ रिस्टोरेटिव टाइप ऑफ, जो कि एपीमॉर्फोसिस में आएगा। रिपेरेटिव, देखो नाम से और अगर रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, रिपेरेटिव लीवर इन ह्यूमन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है लीवर इन ह्यूमन। हमारा जो लीवर होता है, इट इज परफॉर्म द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, क्लियर, अमोनिफिकेशन प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस द सर्टेन हिपेटोसाइट सेल्स or certain liver cells going to be damaged and the damaged liver cells are again reparative, उनका रिपेयरिंग होगा। ठीक है, तो दे विल द पावर, अगर बोला जाए कि हमारी बॉडी के किस ऑर्गन के अंदर रीजनरेशन की पावर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लीवर। किस प्रकार का रीजनरेशन हो रहा है उसमें, रिपेरेटिव टाइप का रीजनरेशन होगा। व्हाट डू यू मीन रिपेरेटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन, द सर्टेन टिश्यू दोज आर डैमेज आर रिपेयर अगेन एंड इट दिस इज द पार्ट ऑफ द एपीमॉर्फोसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन इन विच ओनली द सर्टेन डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी रिपेयर, सर्टेन डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी रीग्रोथ। क्लियर, तो ये था हमारे पास में रीजनरेशन। नाउ अब हम बात करेंगे रीजनरेशन के बाद में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट 5 इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक्चुअली व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। ठीक है, फर्स्ट बात तो अपन ये याद कर लो कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है परफॉर्म्ड बाय द हायर ग्रेड ऑफ प्लांट, दैट मीन्स इट इज परफॉर्म्ड बाय द एंजियोस्पर्म, परफॉर्म्ड बाय द जिम्नोस्पर्म। हायर ग्रेड ऑफ प्लांट के अंदर परफॉर्म होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। In this process of vegetative propagation, actually any vegetative part of the plant, any vegetative part, remember root, stem, leaf, clear, any vegetative part which
परफॉर्म ए स्पेसिफिक ग्रोथ प्रोसेस एंड कन्वर्ट इनटू द कंप्लीट प्लांट बॉडी। ठीक है, इसमें हम किसी प्लांट के एक छोटे से प्रोपेग्यूल को यूज करेंगे। व्हाट इज द प्रोपेग्यूल? एनी वेजिटेटिव और सोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज नोन एज ए प्रोपेग्यूल एंड इट इज अ टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज in which we are going to take only a single parent। NCERT की बुक में क्वेश्चन है कि इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ए टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? और आंसर इज यस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Why the vegetative reproduction या vegetative propagation is a type of asexual reproduction? Because in this process only single parent take part. Single parent take part in the reproduction. That's why vegetative propagation is an asexual reproduction. In this vegetative propagation, we takes any vegetative प्रोपेग्यूल, हम कोई भी एक छोटा सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स लेंगे। एक्चुअली व्हाट इज द प्रोपेग्यूल? ए स्मॉल पीस ऑफ स्टेम, आइदर स्टेम और रूट और लीफ which develop complete plant body because these all root, stem, leaf having the power of totipotency, having the power of totipotency, and with the power of totipotency they developed into the complete plant body. Clear? Now vegetative propagation is basically of two types. First one is natural vegetative propagation and second one is artificial vegetative propagations. Clear? What is the basic difference between the natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation? The natural vegetative propagation is performed without the interference of human. There is no role of the human, there is a role of only the nature. And artificial vegetative propagation is performed with the interference of the human. Clear? So there are the two patterns, natural vegetative propagation as well as the artificial vegetative propagations. Clear? चलो अब हमको ये तो पता चल गया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम प्रोपेग्यूल्स यूज करेंगे। एंड व्हाट इज एक्चुअली प्रोपेग्यूल्स? दे आर स्मॉल पीस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ एंड दिस थ्री हैविंग द पावर ऑफ टोटिपोटेंसी। नाउ the natural vegetative propagations is firstly we are going to study about the root. Clear? In the root there are the two example. Number one is the woody plants and number two is root tubers. Woody plants and number two is root tubers. वुडी प्लांट के अंदर जो यूज होगा वो एक्चुअली होगा टैप रूट, और टैप रूट्स पे प्रेजेंट होनी चाहिए एडवेंटिशियस बर्ड। दैट मीन्स इन वुडी प्लांट हैविंग एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप ऑन टैप रूट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इन रूट ट्यूबर दैट मीन्स ए फॉर्मेशन ऑफ adventitious birds develop on simple on the root tuber. Clear? The best example of woody plant is neem and the best example of root tuber development is the sweet potato. Clear? So in the natural we are going to study about the root, जो कि vegetative propagations का patterns होगा। root में जो हम parts पढ़ेंगे, most of the woody plants, best example neem और woody plants जो होंगे उनमें tape root यूज किया जाएगा, याद रखना। और टैप रूट में जो डेवलप होगा वो होगा एडवेंटिशियस बर्ड्स का डेवलपमेंट होगा। ऐसा चाहे जो रूट ट्यूबर्स होंगे
रूट ट्यूबर्स में हम किसकी बात करेंगे? जो स्पेसिफिक रूट ट्यूबर्स होते हैं उनका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में स्वीट पोटैटो ही है रूट ट्यूबर्स को लेकर। एंड दे ऑल्सो डेवलप द एडवेंटिशियस बर्ड्स, इनके पास में एक स्पेसिफिक एडवेंटिशियस बर्ड का होना कंपलसरी होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास में जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की बात करेंगे उसमें हमारे पास में एग्जांपल आएगा हमारा स्टेम को लेकर। सेकंड बेस्ट एग्जांपल इज द स्टेम। अब स्टेम में हमारे पास में क्या क्या है? देयर आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। द फर्स्ट वन इज द बल्बिल, रनर, सकर, स्टेलॉन। चलो बल्बिल को हम बाद में लेंगे। रनर, सकर, स्टेलॉन, ऑफसेट, ट्यूबर, बल्ब, कॉम, एटसेट्रा, ठीक है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्यूबर? द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर इज द potato. Potato is a modified stem which is present under the ground, and the potato having specific eyes, and from these eyes form adventitious root. तो पोटैटो के अंदर जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमको शोन होगा, दे आर एक्चुअली दी आईज, एंड दीज आईज हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। रनर का एग्जांपल्स हम देखें तो सिंपल एग्जांपल है हमारे पास में दूब ग्रास, सकर के अंदर हम बात करेंगे मिंट को, स्टेलॉन का एग्जांपल है हमारे पास में स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द वाटर हायसिंथ, बल्ब में हम बात करें गार्लियक, अनियन, एंड कॉम्स में बात करें तो कोलोकेसिया। क्लियर? सो दे आर एक्चुअली द स्टेम मॉडिफिकेशन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे टेक पार्ट्स करने वाले हैं। वाटर हायसिंथ को लेकर हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी है कि वाटर हायसिंथ आर टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हायसिंथ आर टेरर ऑफ बंगाल। आइकोर्निया क्रेसिपस इसका बॉटनिकल नेम है, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आइकोर्निया क्रेसिपस, एंड दे आर कंसिडर्ड एज ए टेरर ऑफ बंगाल। व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज ए टेरर ऑफ बंगाल? हियर एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, you have to know about the water hyacinth, they having the synetic beauty. वाटर हाइसिंथ को इंडिया में जो यूज किया गया है, दे आर यूजिंग फॉर देयर सिनेटिक ब्यूटी बिकॉज दे आर हैविंग वेरी ब्यूटीफुल ब्लू फ्लावर। ठीक है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक था सिनेटिक ब्यूटी का। बट प्रॉब्लम इज दैट वाटर हाइसिंथ इज नॉट एन इंडियन स्पीसीज। वाटर हाइसिंथ इज नॉट एन इंडियन स्पीसीज, इट इज बोरोड फ्रॉम द अमेरिका। ठीक है, तो इन इंडिया देर इज नो प्रीडेटर ऑफ द वाटर हाइसिंथ। जब इसका प्रीडेटर ही नहीं है तो ये अपनी ओवर ग्रोथ को नॉन स्टॉप करता रहेगा। देर इज नो कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वाटर हाइसिंथ, एंड ड्यू टू दिस ओवर ग्रोथ, why is water hyacinth is utilized? They are actually used, they are actually grown for their blue flower, but there is no natural predator, so they grow very fast, and they cover होल वाटर बॉडी। इतने स्पीड से इन्होंने ग्रो किया कि उन्होंने पूरे वाटर कैपिटल को, पूरे वाटर बॉडी को ही क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। एंड ड्यू टू द कंप्लीशन और ड्यू टू द कवरिंग ऑफ द होल वाटर बॉडी, देयर इज ए डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज डिप्लीशन ऑफ लाइट। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की एंड वाटर के अंदर लाइट को डिप्लीट होने लगा।
एंड ड्यू टू डिप्लीशन इन वाटर, ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लाइट इन वाटर, जितने भी हमारे पास में वाटर एनिमल हैं एंड जो भी हमारे पास में वाटर प्लांट है, they are going to be die and nearly to be extinct. Clear? That's why water hyacinth is considered as a terror of Bengal. First, why the water hyacinth are grow in India? Because they having the scenic beauty, having the blue color flowers. Second one, water hyacinth, there is no natural predator in India because it is an exotic species which is coming from the USA. They having no any natural predators, so इनका जो ग्रो है वेरी फास्ट होगा. ड्यू टू द फास्ट ग्रो दे कवर द होल वाटर बॉडी, एंड ड्यू टू द कवरिंग ऑफ द होल वाटर बॉडी द ऑक्सीजन एंड लाइट डिप्लीटेड फॉर द एनिमल्स एंड द वाटर प्लांट, एंड सून दे आर गोइंग टू बी डाइड एंड दे आर टू बी एक्सटिंक्ट. जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी को लेकर वाटर हाइसिंथ में, वो है व्हाई वाटर हाइसिंथ की जो प्रॉब्लम्स है डिड नॉट गेट रिड ऑफ. ये एक फ्रेज दे रखी है, एक फ्रेज दे रखी है लास्ट लाइन के अंदर, आपके एनसीईआरटी को ढंग से चेक करना. एक फ्रेज है हमारे पास में गेट रिड ऑफ. गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा, ठीक है, किसी चीज को रिमूव करना. इट इज इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ द वाटर हाइसिंथ. व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ वाटर हाइसिंथ? ड्यू टू द ऑफसेट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ड्यू टू द ऑफसेट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि इनके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा वो बहुत फास्ट होता है. नंबर वन, पहली बात तो ये है कि इनके जो प्रोपोगेशन हो रहा है इट इज फ्रॉम द it is type of the offset type, and second there is no natural predator of the water hyacinth in India. That's why it is difficult to get rid of from this problem of the water hyacinth, and it is still the terror of the Bengal. Clear? अगर स्टेम की हम बात करें कि अगर स्टेम से अपन को नेचुरल टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना है तो स्टेम में किस स्ट्रक्चर का होना बहुत कंपलसरी है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नोड्स. शुगर कैन के अंदर आपको बहुत इजीली नोड्स दिखाई दे जाएंगे. सो एक्चुअली नोड स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ adventitious root. If a plant would like to asexual reproduce from the vegetative propagation, then it have to be required nodes, and from the nodes adventitious roots are emerge out. इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें शुगर कैन को लेकर, तो फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन इट्स नोड्स शुड बी नियर टू द डैम्प सॉइल. उसकी नोड्स को डैम्प सॉइल के पास होना कंपलसरी है. फ्रॉम द नोड्स एडवेंटिशियस रूट्स आर रीग्रोथ, एंड शुगर कैन की जो प्लांटिंग होगी, जो उसका फील्ड होगा वो भी डेवलप करेगा. तो देयर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द ऑफसेट एंड द नोड्स. क्लियर? ये दोनों आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है. अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, अबाउट द गेट रिड ऑफ, एंड शुगर कैन के लिए नोड्स. और नोड्स से क्या डेवलप होने वाले हमारे पास में? एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होगा. क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, उस नेक्स्ट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जिसका नाम है लीफ. थर्ड नेक्स्ट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज लीफ. ठीक है, यहां हम लीफ के लिए बात करेंगे तो हमारे पास में दो एग्जाम्पल है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कमिंग फ्रॉम द ब्रायोफाइलम लीफ, and second example is coming from the begonia leaf. In bryophyllum, when the new plants are developed, they actually develop from the margin, or we can say that notches of the leaf. Either they emerge from the margin of the leaf and notch of the leaf, while in begonia the new plant develop from the petiole and surface of leaf vein. There is a two great difference between the leaf vegetative propagation is bryophyllum and leaf vegetative propagation is begonia. Leaf vegetative propagation in bryophyllum
in this the new plant or the new adventitious roots are coming from the margin of the leaf or either from the notch of the leaf, while in begonia the new adventitious root of new plant is coming from the petiole or coming from the surface of the leaf. Here the fourth one is the bulbil. Actually, what is the bulbil? It is a reproductive bird. ये एक reproductive bird है, ठीक है. Due to somehow reason, if a reproductive structure which is in future want to convert into the flower, but due to some essential hormone, due to depletion of some essential hormone or essential minerals, the floral bud is not to be developed completely, and the incomplete reproductive floral bud is known as the bulbil. This bulbil is detached from the plant and convert into a complete new plant body, and best example is agave. बुक में आपके इसका डायग्राम दे रखा है अगेव का, और डायरेक्टली एनसीईआरटी में अगेव का डायग्राम पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना, ठीक है. बल्बिल इज अ रिप्रोडक्टिव बर्ड एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बल्बिल इज द अगेव. एंड द लास्ट वन ऑफ द वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज टूरियन. ठीक है. व्हाट इज टूरियन? अगर टूरियन को समझना है तो इट इज सिंपल टर्म, इट इज एन एक्वाटिक बल्बिल. यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स में जो बल्बिल्स होंगे, बल्बिल्स मतलब रिप्रोडक्टिव बर्ड्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स के बल्बिल्स उनको स्पेसिफिक नेम दिया गया है टूरियन, एंड द एग्जांपल ऑफ द टूरियन इज पोटेमोगेटॉन. एक एक्वेटिक प्लांट है जो वेल नोन है, पोटेमोगेटॉन, एंड दिस पोटेमोगेटॉन परफॉर्म्ड बाय द एक्वेटिक बल्बिल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से इसका, एंड द एक्वेटिक बल्बिल्स इज नोन एज द टूरियन. एग्जांपल पोटेमोगेटॉन. क्लियर? मैंने आपको साथ में डायग्राम दे रखा है, जिस डायग्राम हमारी बुक में से. इस डायग्राम में फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास में पोटैटो को लेकर है, ठीक है. इसमें अगेव का भी डायग्राम है हमारे पास में, ध्यान रखना. और अगेव इंपॉर्टेंट डायग्राम, पोटैटो में जो आइज होती है, फ्रॉम दिस आइज द एडवेंटिशियस बर्ड्स और एडवेंटिशियस रूट्स आर ग्रो एंड कंप्लीट प्लांट बॉडीज आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड. क्लियर?